Good morning, everyone. We have to start with the final accounts from today. Final accounts is a summary of the entire transactions during the year. Final accounts gives you result and the position of the business. It gives you result and the position of the business. So try to understand what includes final accounts. Let me share the screen. Yeah, let's start. एवरीवन ध्यान देना, बहुत अच्छा चैप्टर है एंड ये चैप्टर हमेशा लगेगा, हमेशा मतलब हमेशा ध्यान देना. फाइनल अकाउंट्स, यू नो सबसे पहले आते हैं ट्रांजैक्शंस एंड द इवेंट्स. बराबर, सबसे ऊपर रहेंगे ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स. मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, मॉनिटरी इवेंट्स. देन we will record them in the primary books of accounts called as journal or subsidiary books. We will record them in journal or the subsidiary books. Every transaction has two effects, debit effect and credit effect. Two aspects, dual aspect. दो aspect होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट. Once we record in the journal, जब हम जर्नलाइज करते हैं ट्रांजैक्शंस को, we will post them to the second book that is called as ledger. So जर्नल से हम लेजर में पोस्ट करते हैं, सब्सिडरी बुक से हम लेजर में पोस्ट करते हैं, राइट. लेजर इज अ बुक कंटेनिंग ऑल अकाउंट्स इन द टी फॉर्मेट. इट इज अ बुक व्हिच कंटेन्स ऑल अकाउंट्स इन द टी फॉर्मेट, लेजर बुक. Then at the end of the year you balance the ledgers. You balance the ledger. You know how to balance the ledger. अगर डेबिट साइड इज हेवियर, take the total of debit side, put it on credit side and find out the difference on the credit side. वो difference debit, वो balance debit रहता है. If the credit side is heavier, तो credit की total पहले ले लो, put it on debit side and फिर debit पे difference ढूंढो. So that is credit balance. बराबर. Now आगे, then आगे, यहाँ तक क्लियर है. Transactions and events, then journal or subsidiary books, then ledger. अब ध्यान देना, लेजर के बाद we prepare trial balance. Which shows the summary of all ledger account balances. If you remember, हमने ट्रायल बैलेंस भी किया है और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी ट्रायल बैलेंस के सॉल्व किए. आगे, ठीक है, यहां तक क्लियर है. आगे, लेजर एंड द ट्रायल बैलेंस. सो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विल बी रिकॉर्ड इन द जर्नल. जर्नल से हम उसको पोस्ट करते हैं इन द लेजर. लेजर एट द एंड ऑफ द ईयर वी बैलेंस ऑल द लेजर अकाउंट्स एंड वी प्रिपेयर द समरी ऑफ द लेजर बैलेंसेस. डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस की हम क्या करते हैं, समरी बनाते हैं. वी गेट ट्रायल बैलेंस. And trial balance should tally. Trial balance debit total should be equal to credit total. And with the help of trial balance and some adjustments, we prepare final accounts. This is the last step of your bookkeeping and accountancy.
यहां तक हम ये जो चीज है दिस इज बुक कीपिंग. मेंटेनिंग जर्नल एंड लेजर इज बुक कीपिंग. And preparation of trial balance and the final account is accountancy. Try to understand. And that is what we are studying in our syllabus, right? Bookkeeping and accountancy. Try to understand. सर हमें जर्नल पता है, हमें लेजर पोस्टिंग भी आती है, और सर हमें ट्रायल बैलेंस भी निकालना आता है. Once you are given trial balance, you are required to prepare what? You are required to prepare final accounts. So what is included in the final accounts? Try to understand. लिख लेना. Final accounts. फाइनल अकाउंट में दो चीजें होती है. एक होती है पोजीशन स्टेटमेंट. We prepare position statement. What is a position statement? It talks about where business stands. Position क्या है business की, right? ठीक है. ध्यान देना क्या बोल रहा हूं. पोजीशन स्टेटमेंट. Position statement means what business owns and what business owes. It talks about assets and liabilities. That is balance sheet, commonly known as balance sheet. आप कहां पे कितने पानी में खड़े हो, आप कितने स्ट्रांग हो, आप कितने, आपकी लाइबिलिटीज कितनी, आपके असेट्स कितने. So that is given by balance sheet. So final accounts includes position statement which talks about the assets and liabilities, that is the balance sheet. And second statement is a income statement. That is, it talks about incomes and expenses. That is given by trading and profit and loss account. That is given by trading and profit and loss account. So what I am talking about, बैलेंस शीट में दो चीजें होती है. बैलेंस शीट में दो चीजें होती है. फर्स्ट, फाइनल अकाउंट्स में दो चीजें होती है. एक होता है बैलेंस शीट, दूसरा होता है पी एंड एल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट. लिख लेना. बेसिकली there are manufacturing entities, and non-manufacturing entities. Manufacturing and non-manufacturing. Manufacturing entities are the entities which manufacture goods and then they sell. Non-manufacturing entities, they don't manufacture, they purchase and they sell. They are traders. Non-manufacturing are traders.
डीलर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, and they are manufacturers. इनके फाइनल अकाउंट्स में, मैन्युफैक्चरर्स के फाइनल अकाउंट्स में होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, दूसरा अकाउंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरा अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लास्ट बैलेंस शीट. And along with the explanation, that is notes to accounts. These are the things. ये फाइनल अकाउंट्स में होता है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के. इन केस ऑफ ट्रेडर्स, उनके फाइनल अकाउंट्स में होता है they don't prepare manufacture account because traders do not manufacture, इसलिए they do not prepare manufacture account, they trade, therefore trading account रहेगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड नोट्स. मतलब ये चीजें तो कॉमन नहीं है, ये चीजें कॉमन है. मैन्युफैक्चर अकाउंट करना है नहीं करना, डिपेंड्स ऑन वेदर यू आर मैन्युफैक्चर और नॉट. मैन्युफैक्चरर्स प्रिपेयर व्हाट, ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, manufacturers prepare manufacturing account, traders do not prepare manufacturing account because they do not manufacture. ये बहुत सिंपल चीज बोल रहा हूं. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं. मैन्युफैक्चर अकाउंट गिव्स यू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट गिव्स यू cost of goods manufactured. Manufacturing account gives you cost of goods manufactured. आपने कितने cost of goods manufacture किए, ठीक है. देन ट्रेडिंग अकाउंट गिव्स यू gross profit or gross loss, gross profit or loss. P&L account gives you net profit or net loss. Net profit or loss. Balance sheet gives you financial position, that is assets and liabilities. And notes to account gives you explanation. लिख लेना, मेक इट फास्ट. और हमें ये सब चीजें डिटेल में सीखनी है, ये सब चीजें हमें डिटेल में सीखनी है, यही हमारा टारगेट है. हमारे सिलेबस में नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज है, ये 11th एंड 12th के सिलेबस में. एंड ये फाउंडेशन के सिलेबस में. फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज फाउंडेशन के सिलेबस में.
लिख लेना ही। सो हमें क्या करना है, हमें ट्रेडिंग अकाउंट करना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करना है, हमें बैलेंस शीट करनी है, दैट्स इट। ठीक है, हमें तीन चीजें करनी है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट इज अ वर्किंग नोट। नोट्स टू अकाउंट इज वर्किंग नोट। होने का यस लिखो सो दैट वी कैन मूव अहेड। गुड। सो अभी तक मैंने क्या बोला, व्हाट इज आवर फ्लो, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, एंड देन वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, ध्यान देना, वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। सो फाइनल अकाउंट्स आर अप, राइट। फाइनल अकाउंट्स में दो चीजें करनी है हमें, एक करनी बैलेंस शीट जिसमें असेट्स एंड लायबिलिटीज रहते हैं, जिसमें असेट्स एंड लायबिलिटीज रहते हैं, एंड दूसरा करना है हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट व्हिच गिव्स यू प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट आपको ग्रॉस प्रॉफिट देता है, P&L आपको नेट प्रॉफिट देता है। हम दो प्रॉफिट ढूंढते हैं, एक ढूंढते ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा ढूंढते नेट प्रॉफिट। तो दैट इज गिवन बाय, राइट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Manufacturing entities also prepare manufacturing account along with trading, P&L and balance sheet. But manufacturing entities का फाइनल अकाउंट हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं करेंगे। हम नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का फाइनल अकाउंट कर रहे हैं जिन जो ट्रेड करते थे, परचेज द गुड्स, दे सेल द गुड्स, परचेज द गुड्स, सेल द गुड्स, परचेज द गुड्स, सेल द गुड्स। सो वो ट्रेड करते हैं, ट्रेड, दे डोंट मैन्युफैक्चर, एंड देयरफॉर उनके इसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनेगा, उनके इसमें डायरेक्टली बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो ये सब चीजें रहेगी इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी जो हमारे सिलेबस में इन ईयर 11th एंड 12th। ठीक है, आगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट? ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ लेजर्स, ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ लेजर बैलेंसेस, बैलेंस शीट इज अ पोजीशन स्टेटमेंट। बैलेंस शीट इंटरप्रिटेशन के लिए यूज की जाती है, ट्रायल बैलेंस नहीं। इफ यू हैव टू इंटरप्रेट द थिंग्स यू यूज बैलेंस शीट एंड नॉट द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का एज सच कोई पर्पस नहीं है, जस्ट इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अगर ट्रायल बैलेंस टैली हुआ है तो हम बोलते हैं अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एक चैप्टर है, उसमें ट्रायल बैलेंस का फायदा होता है, बट नो, इट इज अ बैलेंस शीट व्हिच इज यूज्ड मोस्ट। समझेगा आपको बैलेंस शीट का फायदा क्या है, जब तक हम करेंगे नहीं तब तक नहीं क्लियर होगा, ध्यान देना। बेसिकली there are 4 accounts in the trial balance। ठीक है, there are 4 types of account balances in the trial balance। first is asset accounts, they have debit balance, then there are liability accounts, they have credit balance, ठीक है। असेट अकाउंट्स हैव डेबिट बैलेंसेस, लायबिलिटी अकाउंट हैव क्रेडिट बैलेंसेस, ये आपको पता ही होना चाहिए, देयर इज नो अदर ऑप्शन। देयर आर इनकम अकाउंट्स which have credit balances, and there are some
expenses accounts which have debit balances. So trial balance में you will find 4 types of accounts. Trial balance में you will find 4 types of accounts. ध्यान देना, asset account, liability account, income account and expense account. 4 टाइप्स के आपको बैलेंसेस मिलेंगे. फाइनल अकाउंट्स में आपको 4 टाइप्स के बैलेंसेस मिलेंगे. ठीक है, आगे. सो ट्रायल बैलेंस जो आप देखते हो ऐसा ट्रायल बैलेंस रहेगा, बराबर. दीज आर डेबिट बैलेंसेस एंड दीज आर द क्रेडिट बैलेंसेस. डेबिट बैलेंसेस में या तो असेट्स रहेंगे या तो एक्सपेंस रहेंगे. डेबिट कॉलम में या तो असेट्स रहेंगे या तो एक्सपेंस रहेंगे. क्रेडिट कॉलम में या तो इनकम्स रहेंगे या लायबिलिटीज रहेंगे. देन ट्राई टू अंडरस्टैंड. Incomes, there are 2 types of incomes. Incomes for the preparation of the final account. Incomes 2 types के होते हैं, sales and all other incomes. इनकम्स 2 टाइप्स के. इनकम में क्या आता है? सेल ऑफ गुड्स, सेल्स अकाउंट, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, सेल ऑफ स्क्रैप, बहुत सारी चीजें इनकम रहती है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो इन इनकम्स को हम 2 में डिवाइड करते हैं. एक होता है सेल्स इनकम एंड बाकी सब इनकम, अदर इनकम अकाउंट्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक होगा सेल्स एंड बाकी सब. ध्यान देना, सेल्स इनकम दे हैव क्रेडिट बैलेंस है ना. सेल्स को क्रेडिट बैलेंस है, सेल्स को क्रेडिट बैलेंस है, तो वो क्रेडिट ट्रेडिंग को क्रेडिट किया जाता है. सेल्स इज ए क्रेडिट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमें प्रॉफिट ढूंढना है. We have to find out profit. What is the profit? Profit is income minus expense. Profit is income minus expense. So there are income accounts, there are expense account. अलग-अलग income account है, अलग-अलग expense account है. अलग-अलग income account से अलग-अलग expense account है. तो हम क्या करते हैं? income minus expense करने के लिए हम सब incomes को, जितने जितने incomes हैं, इन सब इनकम्स को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लेके आते हैं. वी ट्रांसफर ऑल इनकम्स. हम सब इनकम्स हैव अ क्रेडिट बैलेंस, इनकम्स हैव क्रेडिट बैलेंस, तो उनका क्रेडिट हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट को देते हैं. इनकम्स. एक्सपेंसेस हैव डेबिट बैलेंसेस. देयर आर मेनी एक्सपेंस अकाउंट्स, परचेज, ऑक्ट्राई, वेजेस, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, printing and stationery, advertisement, bad debts, depreciation. There are many kinds of बहुत सारे expense account है. हम सब expense account को trading and P&L के डेबिट में डाल देते हैं. तो हमने पूरे साल में क्या किया? जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे, हमने हर इनकम को अलग अलग रिकॉर्ड किया. सेल्स इनकम को अलग, डिविडेंड रिसीव्ड को अलग, कमीशन रिसीव्ड को अलग, इंटरेस्ट रिसीव्ड को अलग, डिस्काउंट रिसीव्ड को अलग, रेंट रिसीव्ड अलग. We recorded each income separately. हर इनकम का अलग अलग अकाउंट कर दिया, हर इनकम का अलग अलग अकाउंट ओपन कर दिया. एंड दे हैव द क्रेडिट बैलेंसेस. एंड हर एक्सपेंस को हमने अलग अलग रिकॉर्ड किया. परचेस अलग, ऑक्ट्राई अलग, वेजेस अलग, सैलरी अलग, एडवर्टाइजमेंट अलग, बैड डेट्स अलग, डेप्रिसिएशन अलग. हर एक्सपेंस को अलग अलग नाम के अंडर डेबिट किया, राइट. उनको डेबिट बैलेंसेस है. तो हमें एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम सब लेजर बैलेंसेस को, राइट, ट्रायल बैलेंस करेंगे, बैलेंस करके उनको लेजर्स को बैलेंस करके जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो हमें बहुत सारे इनकम्स अकाउंट दिखेंगे और बहुत सारे एक्सपेंस अकाउंट दिखेंगे. देयर आर मेनी इनकम अकाउंट्स एंड देयर आर मेनी एक्सपेंस अकाउंट. इनकम्स अकाउंट आर शोइंग क्रेडिट बैलेंसेस एंड एक्सपेंस अकाउंट्स आर शोइंग डेबिट बैलेंसेस. तो हमें प्रॉफिट ढूंढना है. तो व्हाट इज द प्रॉफिट?
सब इनकम्स की टोटल ले लो, आपके पास जितने इनकम अकाउंट्स है उनकी टोटल ले लो, एंड फिर उस टोटल से माइनस करो एक्सपेंसेस की टोटल। आपके पास अलग अलग इनकम अकाउंट्स है उनकी टोटल ले लो, अलग अलग एक्सपेंस अकाउंट है उनकी टोटल ले लो, एंड इनकम माइनस एक्सपेंस इज अ प्रॉफिट। उसके लिए अकाउंट्स में वो ढूंढने के लिए, इनकम की टोटल लेने के लिए और एक्सपेंस की टोटल लेने के लिए हम एक टेम्पररी अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। एक टेम्पररी अकाउंट ओपन करते हैं एट द एंड ऑफ ईच ईयर जिसका नाम है राइट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो सारे इनकम्स को जो क्रेडिट है, सेल्स इनकम है, उसको क्लोज करके ट्रेडिंग एंड पीएनएल में डाल देंगे। डिविडेंड रिसीव्ड इनकम है वो क्रेडिट है, उसको क्लोज करके ट्रेडिंग एंड पीएनएल में डालेंगे। कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट बैलेंस है, उसको क्लोज करके यहां पे डालेंगे। सारे इनकम्स को क्लोज किया जाएगा एंड उसको ट्रांसफर किया जाएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे आपको टोटल इनकम पता चलेगी, देख सकते हैं जितने सारे इनकम अकाउंट्स आपने पूरे साल में ओपन किए थे सबको एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोज किया जाएगा बाय ट्रांसफरिंग देयर बैलेंसेस टू ए यूनिक अकाउंट दैट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। उनका क्रेडिट हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, उनका क्रेडिट हम यहाँ पे क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे टोटल इनकम पता चलेगी, टोटल इनकम। वैसे जितने सारे एक्सपेंसेस थे, परचेस को डेबिट था उसको क्लोज किया जाएगा और ट्रेडिंग एंड पीएनएल को डेबिट मारा जाएगा। एडवर्टाइजमेंट को डेबिट था वो क्लोज किया जाएगा, ट्रेडिंग एंड पीएनएल को डेबिट मारा जाएगा। सैलरी को डेबिट था उस अकाउंट को क्लोज करके यहाँ पे डेबिट मारा जाएगा। तो जितने सारे एक्सपेंस अकाउंट है सबको क्लोज करोगे एंड वो ट्रांसफर करोगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। मतलब पूरे साल आपने अलग अलग इनकम अकाउंट ओपन किए, अलग अलग एक्सपेंस अकाउंट किए। ध्यान देना, जब हम अकाउंटिंग कर रहे थे, हम जब बुक कीपिंग कर रहे थे, जर्नलाइज राइट, जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग, हमने अलग अलग इनकम को अलग अलग अकाउंट में डाल दिया, अलग अलग एक्सपेंस को अलग अलग एक्सपेंस अकाउंट में डाल दिया। एट द एंड ऑफ द ईयर जब हमें प्रॉफिट ढूंढना है तो हमें टोटल इनकम पता होनी चाहिए, टोटल एक्सपेंस पता होने चाहिए। फॉर दैट पर्पस मैंने सारे जितने इनकम्स थे उनको एक जगह पे पुल किया। मैं पुलिंग कर रहा हूं, पुलिंग, मैं एक जगह पे लेके आ रहा हूं, दैट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लेके आ रहा हूं। सो सारे इनकम्स को मैंने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। क्यों क्रेडिट किया? बिकॉज दे हैड द क्रेडिट बैलेंस। सेल्स को क्रेडिट बैलेंस है तो उसको क्लोज करना होगा, तो सेल्स को डेबिट करेंगे एंड ट्रेडिंग एंड पीएनएल को क्रेडिट करेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड को क्रेडिट बैलेंस है, उसको क्लोज करना है तो डिविडेंड रिसीव्ड को डेबिट करना होगा, सेकंड डिफरेंट क्रेडिट का आएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो सब इनकम्स को क्लोज करेंगे, उनका जो क्रेडिट बैलेंस है वो पीएनएल को क्रेडिट करेंगे, ट्रेडिंग एंड पीएनएल को, एंड जितने सारे एक्सपेंसेस है जिनका डेबिट बैलेंस है उनका डेबिट बैलेंस में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस को डेबिट करूंगा। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंस मिलेंगे। सो आई हैव टोटल इनकम, सपोज टोटल इनकम्स आर 10 lakhs and total expenses are 8 lakhs। तो आप बोल सकते हो प्रॉफिट इज 2 lakhs, आप बोल सकते हो प्रॉफिट इज 2 lakhs। इतना सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? द प्रॉफिट इज 2 lakhs। नोट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज नॉट ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस अलग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट अलग, ठीक है। देन ध्यान देना, सो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, ध्यान देना। सो हमने क्या किया, हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस है उस ट्रायल बैलेंस में आपको 4 अकाउंट दिखते हैं। असेट्स अकाउंट दिखेंगे, आपको लाइबिलिटीज अकाउंट दिखेंगे, आपको इनकम अकाउंट दिखेंगे और आपको एक्सपेंस अकाउंट दिखेंगे। ट्रायल बैलेंस इज ए इनपुट फॉर द फाइनल अकाउंट्स। विदाउट ट्रायल बैलेंस यू कैन नॉट प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। सो आपके पास क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस रहेगा, उस ट्रायल बैलेंस से हमें क्या करना है, फाइनल अकाउंट्स करने हैं। तो उस ट्रायल बैलेंस में जो जो इनकम्स है एंड जो जो एक्सपेंसेस है उनको हम कहां पे ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। सो जो ट्रायल बैलेंस में इनकम अकाउंट्स है व्हिच आर शोइंग क्रेडिट बैलेंसेस, उनमें से जो सेल्स इनकम है ना वो ट्रेडिंग में ट्रांसफर करने का, एंड बाकी जो इनकम है वो पीएनएल में जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान देना। आपके ट्रायल बैलेंस में जितने सारे इनकम्स है 2 जगह पे जाएंगे। आपके ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे जो इनकम्स है उसमें से सेल्स इनकम
ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे जाएगा एंड अदर इनकम्स लाइक डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, सेल ऑफ स्क्रैप, ये जो इनकम्स है ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये अदर इनकम में आते हैं, इनको हम P&L के क्रेडिट में डालेंगे। देन ध्यान देना, जो एक्सपेंस होते हैं इन एक्सपेंसेस को भी हम दो में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ध्यान देना, सिंपल है, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्लासिफिकेशन करते हैं। इनकम का दो में क्लासिफाई किया, इनकम को दो में क्लासिफाई किया, एक सेल्स इनकम एंड बाकी सब, सेल छोड़ के बाकी सब, वो बहुत सिंपल है, सेल एंड बाकी सब। एक्सपेंसेस को हम दो में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट एक्सपेंसेस? डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस related to purchase. Direct expenses are the expenses related to purchase or manufacture of goods. जब हम गुड्स परचेस करते हैं, जब हम गुड्स परचेस करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, एज द केस में भी, उसके रिलेटेड जो जो एक्सपेंस रहेंगे ना, वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस रहेंगे। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेसेस ऑफ गुड्स, जब हम गुड्स परचेस करते टाइम जो जो एक्सपेंस करते हैं वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस रहेंगे। वो सब कौन से एक्सपेंस रहेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। मैं डायरेक्ट एक्सपेंस की एक लिस्ट देने वाला हूं, पर समझ लेना। एग्जांपल, परचेस करते टाइम कौन से एक्सपेंस आते हैं? खुद परचेस अकाउंट, परचेसेस अकाउंट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। देन वेजेस अकाउंट, वेजेस कहां पे लगते हैं? मैन्युफैक्चरिंग में लगते हैं। सो वेजेस अकाउंट इज एक्सपेंस, इट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। देन फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, हाँ, इनवर्ड मतलब गुड्स परचेस करते टाइम, इनवर्ड मतलब परचेस करते टाइम अंदर आ रहा है। सो फ्रेट पेड, फ्रेट क्या होता है? जब रेलवे से जब गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तब हमें फ्रेट पे करना होता है। सपोज एग्जांपल, मैंने बॉम्बे में गुड्स परचेस किया और मुझे पुणे में लेके आना है और वो रेलवे से ला रहा हूं, तो मुझे रेलवे को मुझे फ्रेट देना होगा। सो दैट फ्रेट पेड एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ गुड्स इज एन एक्सपेंस। वो एक्सपेंस इनवर्ड है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड, एग्जांपल कैरेज इनवर्ड, मैंने गाड़ी से गुड्स लेके आ गया, ट्रेन से नहीं गाड़ी से लेके आ गया, तो वहां पे मुझे कैरेज देना पड़ेगा उनको। कैरेज इनवर्ड इज एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ गुड्स। वेजेस, कैरेज इनवर्ड, राइट। इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी अगर हम फॉरेन से गुड्स इंडिया में लेके आते हैं तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर हमें जो टैक्स देना होता है वो इंपोर्ट ड्यूटी आ गई। सो इंपोर्ट ड्यूटी इज एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ गुड्स। ऑल दोज एक्सपेंसेस, अलग से लिस्ट लिखेंगे, ध्यान देना, खाली समझ लेना। ऑल दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू परचेस ऑफ गुड्स, जब हम गुड्स परचेस करते हैं उसके लिए जो जो एक्सपेंस करने पड़ते हैं वो सब एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, वो सब, राइट। व्हाट इज मीन बाय स्टैम्प ड्यूटी? स्टैम्प ड्यूटी जब हम कोई रियल एसेट परचेस करते हैं, एग्जांपल हमने फ्लैट परचेस किया, हमने लैंड परचेस की, तो हमें स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट को देनी होती है, वो असेट में ऐड होती है। इट इज नॉट एक्सपेंस, इट इज असेट, वो कैपिटलाइज होती है, वो फिक्स असेट में ऐड होती है, ठीक है। सो व्हेन यू परचेस immovable assets like land, building, flat, आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी होती है गवर्नमेंट को, ठीक है। इट इज 5% ऑफ द एग्रीमेंट वैल्यू। गवर्नमेंट महाराष्ट्र में वो 5% महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाती है। अगर आप महाराष्ट्र में लेते हो तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाती है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। इट इज एडेड इन द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट। So all those expenses related to purchase and the manufacture of goods are direct expense. And what are indirect expense? Other than direct expense, जो direct नहीं वो indirect होंगे।
सर हम ऐसे बाइफर्केशन क्यों करते हैं? रीजन, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट, एक्सपेंसेस क्या होता है? डेबिट। तो अब एक्सपेंसेस को 2 में डिवाइड करो। मैंने पूरे साल कभी ये नहीं बोला आपको कि एक्सपेंसेस को 2 में डिवाइड करना है। एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम फाइनल अकाउंट्स करते हैं तब जाके हम एक्सपेंसेस को 2 में डिवाइड करते हैं। पूरे साल करने की जरूरत नहीं। एक्सपेंस इज एक्सपेंस, या तो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। एट द एंड ऑफ द ईयर, बिकॉज हमें 2 टाइप्स के प्रॉफिट चाहिए, हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए एंड नेट प्रॉफिट चाहिए। तो ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट के लिए हमें इनकम्स एंड एक्सपेंसेस को डिवाइड करना होता है। इनकम को मैंने 2 में डिवाइड किया, इनकम को मैंने 2 में डिवाइड किया, सेल्स इनकम एंड अदर इनकम, एंड एक्सपेंसेस को मैं 2 में डिवाइड कर रहा हूं, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, they are debited to trading account. So डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम P&L अकाउंट में डालते हैं। ये सब बाइफर्केशन क्यों चल रहा है? कौन सा ट्रेडिंग में डालना है, कौन सा P&L में डालना है? देखो, इनकम, इनकम में से कौन सी इनकम ट्रेडिंग में जाती है? सेल्स इनकम। इनकम में से कौन सी इनकम ट्रेडिंग में पोस्ट करते हैं? सेल्स इनकम। बाकी सब इनकम किस में डालते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक्सपेंस में से कौन सा एक्सपेंस ट्रेडिंग में डालते हो? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड बाकी जो एक्सपेंस है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो कहां पे जाते हैं? P&L में जाते हैं। सो एकदम सिंपल इसमें समझा रहा हूं, ध्यान देना, ध्यान देना। ध्यान देना। द अबो अकाउंट इज अ ट्रेडिंग अकाउंट एंड उसका एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसका एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट। दिस अकाउंट्स नाम ही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अकाउंट आपको प्रॉफिट देता है। प्रॉफिट इज इनकम माइनस एक्सपेंस, तो इसमें खाली इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट आएंगे। प्रॉफिट के लिए वी डोंट नीड असेट्स एंड लायबिलिटीज। प्रॉफिट इज वेरी सिंपल, इनकम माइनस एक्सपेंस, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस ऑफ द ईयर इज अ प्रॉफिट। सो हमें सारे इनकम एंड सारे एक्सपेंस यहाँ पे लेके आने, यहाँ पे हमें उनको पुल करना है, एक जगह पे लेके आना, इकट्ठा करना है उनको, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट पे आता है बाय सेल्स, एंड ट्रेडिंग के डेबिट पे आता है टू डायरेक्ट एक्सपेंस। P&L के क्रेडिट पे आता है बाय अदर इनकम, ऑल अदर इनकम्स, एंड P&L के डेबिट पे आता है टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देखो एक चीज समझ लेना, एक्सपेंस डेबिट है, एक्सपेंस डेबिट होता है तो हमने डेबिट ही किया है, हमने ट्रेडिंग एंड P&L को डेबिट किया, बट डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग को किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस P&L को किया, दैट्स इट। देन इनकम्स क्रेडिट होते हैं तो हम उनको क्रेडिट ही करते हैं। सेल्स को ट्रेडिंग को क्रेडिट किया एंड बाकी इनकम्स को हमने कहां पे क्रेडिट किया? P&L में। ये क्यों करते हैं? बिकॉज हमें 2 टाइप्स के प्रॉफिट होते हैं। सो सेल्स माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। सेल्स माइनस, सेल्स इज 100 एग्जांपल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एग्जांपल 60, तो आप बोलोगे हमारा 40 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या हुआ? सपोज सेल्स इज 100, सेल्स इज 100, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60, तो आप बोलोगे 40 रुपीज इज ग्रॉस प्रॉफिट। सो व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट? सेल्स माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल्स इनकम माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, परचेसेस, सेल्स माइनस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेसेस इज ए ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट हम P&L में ट्रांसफर करते हैं। यहां पे आ गया बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ध्यान देना, मैंने बोला था सपोज मान के चलो योर सेल्स इज 100,
your direct expense are 60, therefore your profit, gross profit is 40. आप 40 रुपीज ग्रॉस प्रॉफिट में हो. Your other incomes are 10, dividend received, interest received, commission received, rent received, sale of scrap, discount received 10 रुपए के. Now total अब प्रॉफिट कितना होगा 50 माइनस your expenses are 30, indirect expenses are 30, you will get to net profit of 50 minus 30 20, 50 minus 30 20. ध्यान देना your total income was, ध्यान देना your total income was, sales was 100, other incomes were 10, your total income was 110, 110, total income was 110, your total expenses दो में डाल, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर 60, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर 30. 90 रुपीज के एक्सपेंस है. इनकम 110 की है, इनकम 110 की है, एक्सपेंसेस 90 के, इसलिए प्रॉफिट, योर नेट प्रॉफिट 110 minus 90 is 20. Your net profit is 20. हम मैथमेटिक्स में प्रॉफिट ऐसे ढूंढते हैं, मैथमेटिक्स में प्रॉफिट ऐसे ढूंढते हैं, ध्यान देना, मैथमेटिक्स में प्रॉफिट हम ऐसे ढूंढते हैं, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस और टोटल प्रॉफिट. बट अकाउंट्स में हम प्रॉफिट ऐसे नहीं ढूंढते, अकाउंट्स में हम टी फॉर्मेट में प्रॉफिट ढूंढते हैं. एंड फर्स्ट वी फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड देन वी फाइंड आउट नेट प्रॉफिट. तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए मैंने क्या किया, सेल्स माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस 100 माइनस 60, मैंने उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोल दिया. फिर मैंने अदर इनकम ऐड किया एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस किए, तो मुझे ऑब्वियसली 20 मिलेगा. ये प्रेजेंटेशन का तरीका है सर. क्यों हम ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढते हैं? फॉर आवर एनालिसिस पर्पस. हमें डिसीजन लेनी होती है बिजनेस में, इसके लिए हम ग्रॉस प्रॉफिट अलग से निकालते हैं, नेट प्रॉफिट अलग से निकालते हैं. सो जो आपके टोटल एक्सपेंसेस, टोटल इनकम कितनी आपकी एक मिलेगा, योर टोटल इनकम इज 110, उसमें से सेल इनकम ट्रेडिंग में डाल दी एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस किस में डाल दी, पीएनएल में डाल दी. योर टोटल एक्सपेंस कितने, 90, 90 में से 60 रुपीज ट्रेडिंग में डाल दिए, 30 रुपीज पीएनएल में डाल दिया. सो आपके इनकम 110 ही है, आपके एक्सपेंस 90 है, आपका प्रॉफिट 20 आएगा. बट हम उसको दो जगह पे डाल रहे हैं, इनकम को दो जगह पे डाल रहे हैं. कोई इनकम ट्रेडिंग में डाल रहे हैं, कोई इनकम पीएनएल में डाल रहे हैं, कोई एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग में डाल रहे हैं, कोई एक्सपेंसेस को पीएनएल में डाल रहे हैं. अब वही मैं समझा रहा हूं कि हम एक्चुअली किस में क्या डाल रहे हैं, ये समझने का ट्राई करो. ठीक है. सो ये लिख लेना, मतलब आपको क्लिक होगा कैसे ढूंढना. यहां तक लिख लिया, मैं फॉर्मेट समझा रहा हूं. ये लिख लिया कि सबने? अब ये लिखो, एग्जाम्पल बोल के लिखो. बिकॉज अकाउंट्स में हम जो भी करते हैं ना, अकाउंट्स में हम जो भी करते हैं हम अकाउंट के थ्रू करते हैं, टी फॉर्मेट में करते हैं, प्लस माइनस में नहीं करते. हम किस में करते हैं, टी फॉर्मेट, डेबिट क्रेडिट में करते हैं. लिखो, नेट प्रॉफिट 20 रुपीज. देखो मैथमेटिकली भी नेट प्रॉफिट 20 आता है, अकाउंट्स में भी नेट प्रॉफिट 20 आता है, बट लिखने का तरीका अलग है. हम अकाउंट फॉर्मेट में लिखते हैं, दैट्स इट. जल्दी करो.
जल्दी करो। सो आगे से जब भी फाइनल अकाउंट्स करेंगे, प्रॉफिट मतलब क्या, इनकम माइनस एक्सपेंस। प्रॉफिट मतलब क्या, इनकम माइनस एक्सपेंस। बट हम दो टाइप्स के प्रॉफिट ढूंढते हैं, पहले ग्रॉस प्रॉफिट और बाद में नेट प्रॉफिट। सो हम इनकम को दो में डिवाइड करेंगे, सेल्स इनकम एंड अदर इनकम। सेल्स इनकम किस में जाएगा, ट्रेडिंग में। अदर इनकम किस में जाएगा, P&L में। एक्सपेंसेस को दो में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस किस में जाएंगे, ट्रेडिंग में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस किस में जाएंगे, P&L में। एज सिंपल एज दैट। अकाउंटिंग के टाइम हमें फर्क नहीं पड़ता वेदर वो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है। अकाउंटिंग करते टाइम इनकम इज इनकम, एक्सपेंस इज एक्सपेंस। बट जब हमें प्रॉफिट ढूंढना होगा तो हमें दो टाइप्स के प्रॉफिट ढूंढने हैं, पहले ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, इसलिए हम इनकम को दो में डिवाइड करते हैं, एक्सपेंस को दो में डिवाइड करते हैं। ठीक है। सो ध्यान देना मैंने क्या लिखा है यहां तक। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन द ट्रायल बैलेंस। हर ट्रायल बैलेंस में चार टाइप्स के अकाउंट्स रहेंगे। असेट अकाउंट्स शोइंग डेबिट बैलेंसेस, लायबिलिटी अकाउंट शोइंग क्रेडिट बैलेंसेस, इनकम अकाउंट शोइंग क्रेडिट बैलेंसेस एंड एक्सपेंस अकाउंट शोइंग डेबिट बैलेंसेस। इनकम को दो में डिवाइड करो। जब हम ट्रेडिंग एंड P&L करेंगे, सेल्स इनकम को ट्रेडिंग के क्रेडिट पे डालो, अदर इनकम्स को P&L के क्रेडिट पे डालो। देन एक्सपेंसेस को दो जगह पे डाला जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग के डेबिट पे डाला जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को P&L के डेबिट पे डाला जाएगा। ठीक है। सो व्हाट अबाउट असेट्स एंड लायबिलिटीज? राइट, they are show in बैलेंस शीट। इनको हमें बैलेंस शीट में दिखाना होता है, दैट्स इट। इनको हमें बैलेंस शीट में दिखाना होता है। इनको हमें किधर दिखाना होता है, बैलेंस शीट में। We have to show them in the balance sheet. एसेट लायबिलिटी बहुत सिंपल होता है, उसमें टेंशन नहीं। थोड़ा इनकम भी बहुत इजी, सेल्स एंड अदर इनकम। एक्सपेंसेस में यू हैव टू बी केयरफुल, कौन से डायरेक्ट है कौन से इनडायरेक्ट है, कौन से डायरेक्ट है और कौन से इनडायरेक्ट है। ठीक है, लिख लेना। एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखो। What do you mean by direct expense? मैंने यहाँ पे लिख के दिया था, expenses incurred to purchase or manufacture the goods. Purchases account. Second, purchase account itself is a direct expense. Purchase account itself is a direct expense account. Wages account or wages and salary account. अगर ट्रायल बैलेंस में वेजेस अकाउंट है, डेबिट पे ही रहेगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, वो ट्रेडिंग में डालेंगे। अगर वेजेस एंड सैलरी अकाउंट रहेगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, वो ट्रेडिंग के डेबिट पे आएगा। थर्ड, ऑक्ट्राई अकाउंट, कैरेज अकाउंट और कैरेज इनवर्ड अकाउंट। कैरेज अकाउंट और कैरेज इनवर्ड अकाउंट। फिफ्थ, फ्रेट अकाउंट और फ्रेट इनवर्ड अकाउंट। जब हम गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं तो कैरेज या फ्रेट पे करना होता है। ठीक है, इनवर्ड मतलब परचेस करते टाइम।
देन फ्रेट और फ्रेट इनवर्ड, देन फैक्ट्री एक्सपेंसेस अकाउंट लाइक फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटनिंग, क्योंकि फैक्ट्री में, राइट, फैक्ट्री में, ठीक है, कोई डाउट है तो रेज द हैंड, अदरवाइज डोंट रेज द हैंड, ठीक है। फैक्ट्री में ऑक्ट्राई, थर्ड पॉइंट इज ऑक्ट्राई। ऑक्ट्राई क्या होता है? अच्छा, अरे आपने पुणे में जब आप एंट्री करते हो, पुणे में जब एंट्री करते हो आपने देखा कि बड़े बड़े जो गुड्स कैरियर्स होते हैं ना, उनका वेट करते, देखो ऑक्ट्राई मतलब क्या, व्हेन यू एंटर इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ, नहीं, विद इन द लिमिट्स ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। एग्जांपल आपको हडपसर पे दिखेगा, आपको वाघोली में दिखेगा कि जब पुणे के बाहर के गाड़ियां जो माल लेके आती है, पुणे में आने के पहले दे हैव टू पे द ऑक्ट्राई चार्जेस। उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को उनको एंट्री चार्जेस देने होते हैं, ऑक्ट्राई चार्जेस, तो वो वेट के हिसाब से देने होते हैं। सो ऑक्ट्राई इज व्हेन यू गुड्स, जब आप गुड्स लेके आते हो ना सिटी में, तब आपको वो चार्जेस देने होते हैं। टोल नाका जैसे होता है, जब हम बाइक लेके, हम कार लेके जाते हो, हमें टोल नाका देना होता है, वैसे जब ये फोर व्हीलर्स जो गुड्स वाले होते हैं उनको ऑक्ट्राई देना होता है। एक्सपेंस है, ऑक्ट्राई इज एन एक्सपेंस। कैरेज, फ्रेट, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस। फैक्ट्री क्यों होती है? प्रोडक्शन के लिए होती है। फैक्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, बराबर ना, फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है। So production related all expenses, manufacturing related all expenses are your direct expenses. So factory expenses are direct expenses. आंख बंद करके बोलो, they are direct expenses. 7, import duty और customs duty, और dock charges, etc. So ध्यान देना, ठीक है, एक सेकंड ना, so what I'm trying to tell you, please try to understand, ठीक है। अरे ऑक्ट्राई भाई, कितने बार बोलो, थर्ड पॉइंट इज ऑक्ट्राई, ठीक है। आगे नेक्स्ट ध्यान देना, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस। क्या होता है कि जब हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं ना एक जगह से दूसरे जगह पे, इंपोर्ट, एग्जांपल हमने ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में गुड्स लाए, तो बंदरगाह पे जो चार्जेस होते हैं ना, पोर्ट, पोर्ट पे जो चार्जेस होते हैं उसको बोलते हैं डॉक चार्जेस। गुड्स निकाल लेना वगैरह, ये जो वहां पे जो पोर्ट अथॉरिटीज को जो चार्जेस पे करने होते हैं ना, वो डॉक चार्जेस होते हैं। जो टैक्स पे करना होता है उसको कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं। व्हेन वी परचेज द गुड्स, तब हमें ये टैक्सेस पे करने होते हैं। सो दिस इज एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ गुड्स। तो दीज एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नंबर 8, number 8, let me right, let me find out, एक मिनट मुझे सोचने दो। परचेस हुआ, वेजेस हुआ, ऑक्ट्राई हुआ, कैरेज हुआ, ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ट्रेड रिलेटेड एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे अगर ट्रायल बैलेंस में है तो। देन आपके बुक में देखो डायरेक्ट एक्सपेंस के एग्जांपल, एक सेकंड,
पेज नंबर क्या है फाइनल अकाउंट्स का? टू 71। यस, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। परचेसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड, कस्टम ड्यूटी, वेजेस, कोल गैस एंड फ्यूल। लिखो, कोल गैस एंड फ्यूल, कोल गैस एंड फ्यूल। अगर आपके ट्रायल बैलेंस में कोल गैस एंड फ्यूल अकाउंट है, कोल गैस फ्यूल कहां पे यूज होता है? टू इन द फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में वो यूज होता है, प्रोडक्शन में यूज होता है। सो दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर पर्पस, उस एक्सपेंस का पर्पस परचेस या प्रोडक्शन के लिए, तो वो एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। देन रॉयल्टीज एंड फैक्ट्री एक्सपेंस। रॉयल्टीज, रॉयल्टीज इज ऑलवेज डायरेक्ट, बिकॉज जब हमें प्रोडक्शन करना होता है तो रॉयल्टी पे करनी होती है। सो रॉयल्टीज इज एट द टाइम ऑफ, रॉयल्टी मतलब क्या? एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। किसी ने कोविड की वैक्सीन ढूंढ ली, तो नाउ एग्जांपल, सीरम इंस्टीट्यूट इज प्रोड्यूसिंग द वैक्सीन, तो सीरम हैज टू पे द रॉयल्टी टू द इन्वेंटर, जिसने इन्वेंट की ना वो वैक्सीन, उसको उनको रॉयल्टी देनी पड़ती है। देन ओनली सीरम कैन प्रोड्यूस। सीरम सेल करेगा, सीरम प्रॉफिट कमाएगा, उस प्रॉफिट में से सम प्रॉफिट रॉयल्टी बोल के उस इन्वेंटर को देने होंगे। सो रॉयल्टी इज एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, रॉयल्टी। और क्या, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और कौन कौन से हो सकते हैं? लेट मी शो यू मोर एग्जांपल्स। एक सेकंड। पेपर चेकिंग हुई ना, इतने पेपर है मेरे पास। एक सेकंड। बहुत सारी चीजें कम हो जाएगी। नोट्स नंबर कम होना चाहिए, परफेक्ट, अभी भी है ठीक। एक सेकंड ना। 12th का अकाउंट्स, यस। अब यहाँ पे देखो, इसमें और आपको एग्जांपल ज्यादा मिलेंगे 12th के अकाउंट्स में। These are examples of direct expenses. These are examples of direct expense. ध्यान देना। ट्रेडिंग अकाउंट है, they have given you format of trading account. ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। परचेसेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, वेजेस। वेजेस में लिख लेना, वेजेस के सामने एक और लिख लो। वेजेस के सामने मैंने लिखा वेजेस एंड सैलरी और प्रोडक्टिव वेजेस। अलग अलग नाम हो सकते हैं। प्रोडक्टिव वेजेस नाम में ही है, वेजेस यूज इन द प्रोडक्शन, वेजेस विच आर फॉर द प्रोडक्शन, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव वेजेस। सो वेजेस अकाउंट या वेजेस एंड सैलरी अकाउंट,
या प्रोडक्टिव वेजेस अकाउंट आर डायरेक्ट एक्सपेंस और ट्रेडिंग में आएंगे। देन प्रोडक्टिव और मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, वेजेस एंड सैलरी, इनपुट ड्यूटी, कोल, गैस, वाटर, मोटिव पावर लिखो। नंबर 11 मोटिव पावर। व्हाट इज मोटिव पावर? ध्यान देना, मैं आपको समझाता हूं मोटिव पावर क्या होता है। आपने देखा होगा एमआईडीसी एरिया में ऐसे बड़े बड़े ये होते हैं, ऐसे लाइटनिंग जाती है, देखो लाइट्स के बड़े बड़े ऐसे ये होते हैं, वायर्स होते हैं। नॉर्मल लाइट जो अपने घर में आती है वो वाली नहीं, एमआईडीसी एरिया में ऐसे बड़े बड़े ये होते हैं, वायर के होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। अरे समझा क्या तुम लोगों को? ऐसे एमआईडीसी एरिया में हाई वोल्टेज के वायर होते हैं। ये जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है ना, ये जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, इसको बोलते हैं आप लोग, इस इलेक्ट्रिक सप्लाई को बोलते हैं मोटिव पावर। वो जो बिल जनरेट होता है ना, सपोज एमआईडीसी में यहां से कनेक्शन है, हमारे घर में जो आते हैं ना छोटे छोटे वायर्स होते हैं, इतने बड़े नहीं होते, ये एकदम बड़े बड़े ऐसे 5-6 होते हैं एक साथ ऐसे, आपने देखे होंगे। अगर किसी ने उसको टच किया तो जगह पे गया भाई, चांसेस नहीं, राग भी नहीं रहेगी उसकी। सो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। तो ये जो है ना, ये बड़े बड़े जो कंपनीज में एमआईडीसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग फेज होता है। देखो घर में जो लाइट आती है वो अलग फेज वाली होती है, इंडस्ट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी जाती है वो अलग फेज की होती है। सो उनका जो बिल बनता है ना इलेक्ट्रिसिटी वाले, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो बनता है, हम हमारे बिल को बोलते हैं लाइट बिल। हमारे घर में जो बिल आता है उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल या लाइट बिल बोलते हैं। बट जो फैक्ट्री में बिल आता है उसको लाइट बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं बोलते, बोलते हैं मोटिव पावर बिल। सो मोटिव पावर इज इलेक्ट्रिसिटी यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग। समझ में आ रहा है? तो वो लोग लाइट बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं बोलते, वो उसको बोलते हैं मोटिव पावर बिल। तो मोटिव पावर इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड देयरफॉर दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। आगे और कौन से? रॉयल्टी, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, जब हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तब हम दो टाइप्स के पैकेजिंग करते हैं, प्राइमरी पैकेजिंग होती है और दूसरी सेकेंडरी पैकेजिंग होती है। प्राइमरी पैकेजिंग प्रोडक्शन के टाइम यूज होती है और सेकेंडरी पैकेजिंग सेल के टाइम यूज होती है। सेल करते टाइम हम उसको ठीक से पैक वगैरह करके कस्टमर को देते हैं। सो प्राइमरी पैकेजिंग इज एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और एट द टाइम ऑफ परचेस, वो डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। आगे नेक्स्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री लाइटनिंग, हीटिंग एक्सेट्रा, फैक्ट्री रेंट, ये भी हमने किया। फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस में लिखो आगे, फैक्ट्री इंश्योरेंस इसमें लिखो। फैक्ट्री इंश्योरेंस, expenses related to factory are expenses related to manufacturing। फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है, ठीक है। देन आगे वर्क मैनेजर सैलरी, लास्ट वन। वर्क मैनेजर प्रोडक्शन को सुपरवाइज करता है, प्रोडक्शन को सुपरवाइज करने वाले बंदे को वर्क मैनेजर बोला जाता है, उसकी सैलरी प्रोडक्शन में यूज होती है। वर्क मैनेजर सैलरी, ये जो एक्सपेंसेस की मैंने आपको लिस्ट दी है, ये एक्सपेंसेस है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ऑल दीज एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कौन कौन से ध्यान देना, ये लिस्ट आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। परचेस अकाउंट, वेजेस या वेजेस एंड सैलरी या प्रोडक्टिव वेजेस, ऑक्ट्राई, कैरेज या कैरेज इनवर्ड, फ्रेट या फ्रेट इनवर्ड, factory related all expenses, factory related expenses like factory rent, factory lighting, factory heating, factory insurance, import duty, custom duty, dock charges, import करते टाइम, गुड्स इंपोर्ट करते टाइम जो एक्सपेंसेस होते हैं वो वाले, ट्रेड एक्सपेंसेस, coal, gas and fuel used in the production, royalty,
motive power, primary packing expenses and work manager salary are some of the examples of the direct expenses. All are debited. ये सब डेबिट किए जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आपके ट्रायल बैलेंस में इनमें से कुछ भी रहेगा, अगर आपके ट्रायल बैलेंस में इनमें से कुछ भी रहेगा, ये सब चीजें हम कहां पे डालेंगे? ट्रायल बैलेंस के डेबिट पे डालेंगे। कहां पे डालेंगे? ट्रायल बैलेंस के डेबिट पे, ठीक है। और इनको छोड़ के बाकी जो भी एक्सपेंस रहेंगे सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेंगे। लाइक सैलरी, डायरेक्ट सैलरी डायरेक्ट में है क्या? नहीं, तो इनडायरेक्ट में गया। ऑफिस रेंट डायरेक्ट है क्या? नहीं, इनडायरेक्ट में गया। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे है क्या? नहीं, इनडायरेक्ट गया। बैड टैक्स इसमें है क्या? नहीं, वो इनडायरेक्ट हुआ। इनको छोड़ के बाकी जो एक्सपेंस रहेंगे वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेंगे और पीएनएल में जाएंगे। सो थोड़े एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाएंगे, बाकी एक्सपेंस पीएनएल में जाएंगे। सेल्स इनकम ट्रेडिंग में जाएगा, बाकी इनकम पीएनएल में जाएगा, ठीक है। सो आज हमने चैप्टर स्टार्ट किया है और कल हम इस पे और थोड़ा डिस्कस करेंगे एंड देन हम धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। किसी के डाउट्स बिफोर आई एंड फॉर द डे? किसी के डाउट्स? एनीवन हैज डाउट? ओके, यस, हु हैज रेज्ड हैंड? वर्धन, हाँ बोल रहे। सर इस वाली क्लास के बाद अभी और कोई क्लास है क्या सुबह को? मैडम ने, मैथ्स के मैम ने बोला होगा तो चेक करते जाओ रे, दैट्स ऑलवेज गुड। ग्रुप पे हर चीज होती है, कीप ट्रैक ऑन द ग्रुप, ठीक है। मैडम ने लिखा होगा तो आपको मिल जाएगा। उनका 11th के 2-3 लेक्चर बाकी है। सो मैडम वो 11 का खत्म होके 12 स्टार्ट करने वाली है। सो उनके 2-3 ही लेक्चर्स बाकी है, तो शायद से उन्होंने रखा होगा तो होगा आपका। अभी 12 का लेक्चर चल रहा है उनका, ऐसे, ठीक है। हाँ, यस यस, दिस लेक्चर विल बी अपलोडेड ऑन द ऐप ओनली, ठीक है। थैंक यू।